Hello, Bacho. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. Bacho, in last class, we have learned about chemical effects of electric current, right? So, उसमें हमने देखा था electrolysis, electroplating and magnetic effects of electric current, right? So, I hope आप सब लोगों ने उस chapter को अच्छे से revise किया होगा. And now in today's class, we are going to start with a new chapter that is some natural phenomena, right? So now, Bacho, let's see the spotlight of this chapter. So first of all, we are going to understand natural phenomena such as lightning, earthquakes and cyclones. So बच्चों सबसे पहले हम कुछ natural phenomena देखेंगे जैसे कि lightning, earthquake and cyclones. Then we are going to explain causes and effects of natural phenomena यानी कि natural phenomena cause कैसे होते हैं and इनके effects क्या क्या होते हैं. Then we are going to describe safety measures during natural calamities. यानी कि जब भी कुछ नेचुरल कैलामिटी आती है सो उस टाइम पे हमारे सेफ्टी मेजर्स क्या रहने वाले हैं. देन वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिडिक्टिंग एंड मिटिगेटिंग नेचुरल डिजास्टर्स. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग किसी भी नेचुरल डिजास्टर के आने को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. देन डिस्कस ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए एंड एक्सप्लोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल फिनोमेना. एंड हम लोग क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं सो दैट जब भी कोई नेचुरल फिनोमेना हो सो उस टाइम पे हम लोग लेस वल्नरेबल हो, राइट? So now, bachcho, natural phenomena are events that occur in nature, sometimes with powerful and destructive effects. This chapter focuses on two phenomena, lightning and earthquakes. So बच्चों नेचुरल फिनोमिना होते क्या है जो कि हमारे नेचर के अंदर हो रहे होते हैं, राइट? एंड इन फिनोमिनाज में बहुत ज्यादा पावर होती है एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी होते हैं. सो इस चैप्टर में हम लोग दो नेचुरल फिनोमिनाज की बात करेंगे, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक की. सो नाउ व्हाट इज लाइटनिंग? Lightning is a sudden electrical discharge in the sky, while earthquake involves the shaking of Earth's surface. Both can cause significant damage to life and property. Understanding these natural events and the reasons behind them is important. So now बच्चों अब हमने देखा कि lightning क्या होती है. lightning का मतलब क्या होता है? जो sudden electrical discharge होता है sky के अंदर. While earthquake का मतलब क्या होता है? जब हमारा earth surface बहुत तेज तेज shake होता है, right? अब दोनों ही natural phenomena में हमारी life and property को बहुत ज्यादा damage होता है. सो नाउ अब हम लोग समझेंगे इन नेचुरल इवेंट्स को एंड इनके पीछे के रीजंस को भी. So the chapter will also cover measures that can help to reduce the harm caused by these events, ensuring better safety and preparedness. So now बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग कुछ मेजर्स भी देखेंगे जिससे हम इन इवेंट्स के जो इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं एंड हम किस तरह से बेटरली और सेफली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. So now to learn about lightning, let us understand the basic concept of about electric charges. So now bachcho, here we have boot up. So observe the given picture and answer the questions that follow. So first of all, what name this phenomena? So bachcho ye hai kya? This is lightning, right? So is it a natural or artificial phenomena? So it is natural, right? Can it occur without rain? So bachcho क्या ये बिना rain के हम लोगों ने बिजली कड़कती हुई देखी है? No. So इज देयर अ स्पेसिफिक सीजन फॉर लाइटनिंग स्टॉर्म्स? या सो जो हमारा मॉनसून सीजन होता है, जो रेनी सीजन होता है, उसमें हम लोगों को ज्यादातर लाइटनिंग स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं. सो इट इज बिटवीन जून टू जुलाई, राइट? So now, Bachcho, next we have electrical charges. So electrical charges are responsible for the phenomena of lightning and many other electrical effects we encounter daily. So objects can become electrically charged through a process known as charging by rubbing. So now बच्चों electric charges जो है वो responsible होते हैं बहुत सारे phenomena के लिए जैसे कि lightning के लिए and बहुत सारे electrical effects के लिए. So now objects जो है वो electrically charged जो है वो हो सकते हैं by a process जिसको हम लोग क्या बोलते हैं charging by rubbing. For example, a plastic scale is rubbed on dry hair. It acquires a small electric charge, allowing it to attract light objects like bits of paper. So now बच्चों जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लास्टिक स्केल को अगर ड्राई हेयर पे रब करेंगे सो होता क्या है कि हमारा स्केल जो है उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं, राइट? सो नाउ जब हम इस चार्ज को लेकर जाते हैं बिट्स ऑफ पेपर के पास सो वो इसको अट्रैक्ट कर लेता है. सिमिलरली रबिंग अ प्लास्टिक कोम ऑन योर हेयर वो भी क्या क्रिएट करता है, वो भी स्मॉल चार्ज क्रिएट करता है. इन दिस प्रोसेस नॉट ओनली डू द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स बिकम चार्ज बट मटेरियल्स जो भी रब होते हैं लाइक हेयर और वूल वो भी चार्ज हो जाते हैं. सो
All the substances are composed of tiny units called atoms. अब बच्चों हमारे आसपास जितने भी substances है उन सब के पास क्या है, छोटे छोटे units जिनको हम क्या बोलते हैं, atoms. And atoms के अंदर और भी smaller particles है, two of which जिनके पास charges है जैसे कि electrons and protons. So electrons के पास कौन सा charge है, negative charge, whereas protons के पास कौन सा charge है, positive charge. So now the movement of these charged particles within a substance, उसी की वजह से electric current flow होता है. So this flow of electric current provides us with electricity. And जब ये electric current flow होता है तभी हम लोगों को electricity मिलती है. So which is a form of energy essential for our daily activities, from powering homes to running machines. And इस electricity से ही तो हमारी daily activities possible हो पा रही है, हमारा घर चल रहा है, हमारे appliances work कर रहे हैं, right? So now bachcho, next we have structure of an atom. So most matter in nature exists in an electrically neutral state. अब बच्चों हम लोग हमारे atom के structure को समझेंगे and हमारा जो most of the matter है वो हमारा न्यूट्रल स्टेट में होता है. सो दिस इज बिकॉज चार्जेस विद इन द एटम्स वो बैलेंस्ड होते हैं. सो अब इसको समझने के लिए हमको हमारे एटम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा. सो एटम के अंदर 3 मेन पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम न्यूट्रल, राइट. सो नाउ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो कहां पर होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड एंड दे फॉर्म अ न्यूक्लियस. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज है, राइट. सो हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेंटर में होते हैं एटम के, ठीक है, विच इज हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फोर्स. अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है. सो डिस्पाइट द न्यूक्लियस कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द एटम मास, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू ओवरऑल साइज ऑफ द एटम. अब बच्चों होता क्या है कि न्यूक्लियस के पास हमारे एटम्स का मोस्ट ऑफ द मास होता है बट स्टिल ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है as compared to overall size of the atom. Now electrons कहाँ होते हैं, हमने देख लिया कि सेंटर में हमारे पास कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. सो दिस मोशन इज ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि किसके बीच में है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन. सो in an electrically neutral atom, number of protons is equal to what, number of neutrons. तभी तो दोनों के charges cancel होंगे and atom पे zero charge होगा. So this equal number of negative and positive charges वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को balance कर देते हैं, resulting in the atom having no overall electric charge. Because of this balance, most substances in nature वो electrically neutral ही रहती है. So now bachcho, next we have charging an atom. So when certain objects are rubbed against each other, electrons can be transferred from one object to another. This transfer of electron changes the electric charge of the objects. अब बच्चों जब भी हम किसी objects को rub करते हैं against each other, so electrons जो है वो एक object से दूसरे object में transfer होते हैं and this transfer of इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस में चेंजेस आते हैं. सो इफ एन ऑब्जेक्ट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, सो बच्चों सोचो कि एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, so इसका मतलब उसकी नेगेटिविटी बाहर निकली, सो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. एंड अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इसका मतलब उसके ऊपर उसके अंदर और नेगेटिविटी आई, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. सो द टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ये इंट्रोड्यूस किसने करे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन द 18th century. So the movement of charges between objects is what leads to static electricity. However, in most cases, objects around us remain electrically neutral because they have balanced amounts of positive and negative charges. So now बच्चों अब होता क्या है, in most of the cases, objects जो हमारे आसपास होते हैं वो electrically neutral होते हैं क्योंकि उनके पास balanced positive charge भी है और negative charge भी है. So now bachcho, next we have charging by friction. So when you rub one material to another, they are charged by friction. अब बच्चों होता क्या है कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब कर रहे होते हैं so उनके ऊपर चार्ज आता है, बट किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. So when an object is charged by friction, electrons जो है वो ट्रांसफर होते हैं from one of the objects to the other, leaving both the objects charged. अब बच्चों होता क्या है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चार्ज आता है ड्यू टू फ्रिक्शन, so electrons ट्रांसफर हो रहे
होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो चार्ज हो जाते हैं। सो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल वो हमारे पास क्या है, रबिंग ग्लास विद सिल्क एंड एबोनाइट विद वूल। नाउ व्हेन अ ग्लास रॉड, उसको हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम ग्लास रॉड टू दी सिल्क क्लॉथ। सो ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, सो ग्लास रॉड कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, एंड silk cloth कैसा हो जाता है, negatively charged. So now bachcho here we have when glass rod is rubbed with a piece of silk, both objects ये दोनों ही चार्ज हो जाते हैं, राइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि piece of silk cloth and glass rod इन दोनों को चार्ज किया जा रहा है एंड सी दोनों के ऊपर ही चार्जेस आ गए हैं। सो सिमिलरली जब हम इबोनाइट रॉड को रब करते हैं वूल के साथ, सो नेगेटिव चार्जेस जो है वो पीस ऑफ वूल से कहाँ चले जाते हैं, एबोनाइट रॉड पे, एंड एबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड पीस ऑफ वूल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन टू इनिशियली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, इनको हम लोग रब करते हैं, सो चार्ज बाय बीइंग रब टुगेदर, चार्जेस आर नॉट क्रिएट इन द प्रोसेस, यहाँ पर खाली ट्रांसफर होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। चार्जेस को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन टू ऑब्जेक्ट्स वो हमेशा सेम रहते हैं एंड वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्व्ड। So now here we have charging by conduction. So an object can be charged by touching it to a charged body. अब बच्चों होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज बना सकते हैं जब हम उसको किसी चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं। दिस हैपेंस व्हेन सम चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी वो ट्रांसफर हो जाता है टू द अनचार्ज बॉडी। सो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड दिस मेथड, इसको हम लोग और किस तरीके से रेफर करते हैं, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। सो इफ अ चार्ज ग्लास रॉड इज मेड टू टच एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अब बच्चों होगा क्या अगर हम किसी चार्ज ग्लास रॉड को एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर आएंगे, सो चार्जेस जो है वो ट्रांसफर होंगे, राइट। सो द चार्जेस विल बी ट्रांसफर्ड एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। सो नाउ इन दिस केस अनचार्ज ऑब्जेक्ट, उसके पास क्या आने वाला है, सेम चार्ज आने वाला है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मेटल ऑब्जेक्ट शोन बिलो, इसके पास भी क्या आएगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज आएगा, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज एज दैट ऑफ रॉड। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड मेटल ऑब्जेक्ट के पास जैसे ही इस ग्लास रॉड को लेकर आएंगे, सो मेटल ऑब्जेक्ट पे भी कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। Now next we have charging by induction. So an object can also be charged by bringing a charged object close to it but not touching it. This process of charging is known as charging by induction. In this case, the uncharged object acquires an opposite charge as that of charged object. अब बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हम एक चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं अनचार्ज बॉडी के पास एंड इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। सो नाउ अब जो हमारी अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर भी चार्ज आएगा बट हमारी चार्ज बॉडी का ऑपोजिट चार्ज, राइट। सो नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव डिटेक्टिंग चार्जेस. So electric charge can be transferred from charge object to another through a metal conductor. अब बच्चों होता क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ से, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे मेटल कंडक्टर पे। So an electroscope is used to detect and measure electric charge. The electroscope works on the principle that like charges repel each other. So now बच्चों अब होता क्या है, इसके लिए हमको एक डिवाइस चाहिए एंड डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग यूज कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को। एंड इलेक्ट्रोस्कोप कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको इन्वेंट किया गया था बाय अब्राहम बेनेट in the 18th century and it consists of two very thin metal strips. अब बच्चों इस इलेक्ट्रोस्कोप को बनाया किसने, अब्राहम बेनेट ने। एंड इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर हमारे पास टू वेरी थिन मेटल स्ट्रिप्स है जिनको हम लीव्स बोलते हैं एंड मेटल स्ट्रिप्स को कनेक्ट किया जाता है टू अ मेटल नॉब थ्रू अ मेटल रॉड। सो हमारे पास लीव्स है, इसको कनेक्ट किया जाएगा मेटल नॉब से एंड मेटल नॉब से कैसे कनेक्ट किया जाता है, थ्रू अ मेटल रॉड। So the brass rod is inserted through a rubber of plastic stopper into a glass container. So brass rod को insert किया जाता है, right? So brass rod उसको insert किया जाता है through rubber और plastic stopper glass container के अंदर। So a tin foil उसको use किया जाता है to line the lower part of the inside of the glass container. So क्या होता है कि tin foil को use किया जाएगा so that वो line कर सकता है lower part of the inside of the glass container. Now electroscope उसको mount किया जाता है on a wooden base. The tin foil and wooden base उसको क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप मोर इफेक्टिव। नाउ
व्हेन द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ के साथ, सो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ग्राउंड पे, नाउ अलाउइंग द इलेक्ट्रोस्कोप टू डिस्चार्ज एंड इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। सो व्हेन लाइक चार्जेस वो प्रेजेंट होंगे, सो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, causing the gold leaves to diverge inside the container, right? Now द लार्जर द चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्कोप, उतना ज्यादा हमको डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिलेगा, राइट? नाउ दिस इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज होता है, दस प्रेजेंस ऑफ द चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट उसको हमने किससे डिटेक्ट किया, इलेक्ट्रोस्कोप से। सो ऑन द अदर साइड व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट उसको हम लेकर आएंगे डिस्क के पास, सो गोल्ड लीव्स जो है वो डाइवर्ज नहीं होंगे, राइट? सो दिस प्रोसेस, इसी को क्या बोला जाता है, डिस्चार्जिंग। एंड इफ द डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीव्स उसको इंक्रीज कर दिया जाए, so body has a similar charge, that is negative charge. So if divergence of the leaves उसको decrease किया जाए, so होगा क्या, body के पास opposite charge आ जाएगा, यानी कि positive charge. So the process of transferring charges, जब एक हमारे charges transfer होते हैं from charge object to the earth, इसी को क्या बोला जाता है, earthing. And earthing allows the object कि वो lose कर दे charge को safely, and we say the foil strips वो क्या हो जाएंगे, discharge हो जाएंगे. So here we have pick up more. Earthing in building वो protect करता है लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से by safely directing any linked current into the ground. So बच्चों, अब अर्थिंग की वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, एंड दिस प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद लाइव वायर्स, एंड यहाँ से हम लोग हमारी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। So now here we have thought shower 1. Why do you think charging by rubbing happens best in dry weather? So बच्चों, ड्राई वेदर में क्या होता है कि एवरीथिंग इज ड्राई, राइट? सो फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा क्रिएट होगा, सो फ्रिक्शन जितना ज्यादा क्रिएट होगा उतना ज्यादा चार्जेस जो है वो डेवलप होंगे। So now bachcho, next we have charges in the atmosphere. So about the middle of the 18th century, Benjamin Franklin suggested that lightning is a gigantic spark caused by heavy flow of electric charges. So बच्चों, अगर हम बात करते हैं middle of the 18th century की, so हमारे पास है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि लाइटनिंग किस वजह से होती है, लाइटनिंग एक gigantic spark है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो की वजह से होती है। So between two oppositely charged clouds, he performed an experiment to show that it was possible to draw electricity from the clouds by sending up a kite during the thunderstorm. So बच्चों, अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया था, इन्होंने ये दिखाया था कि इट वाज पॉसिबल टू ड्रॉ इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर से, क्लाउड्स के अंदर से। जब हम काइट को कब भेजते हैं, थंडरस्टॉर्म के टाइम पर हम लोग भेजते हैं स्काई में। सो ही फ्लू अ सिल्क काइट इनटू द क्लाउड्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म विद अ मेटल की टाइड टू थ्रेड ऑफ द काइट। अब बच्चों, इन्होंने करा क्या, इन्होंने एक सिल्क काइट जो है वो फ्लाई करवाई क्लाउड्स के अंदर थंडरस्टॉर्म के टाइम पे एक मेटल की के साथ, राइट? सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने काइट के थ्रेड पे एक मेटल की जो है वो लगा दी। ही गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन ही टच द मेटल की। अब बच्चों, हुआ क्या कि इनको एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक लगा, इन्होंने जैसे ही मेटल की को टच किया। एंड ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज इन द क्लाउड्स फ्लोट डाउन टू दी वेट स्ट्रिंग। अब हुआ क्या कि जो चार्जेस क्लाउड के पास थे वो वेट स्ट्रिंग से फ्लो हुए एंड मेटल की के पास आए। एज लॉन्ग एज द सिल्क थ्रेड वॉज ड्राई, कुछ भी नहीं हुआ था जब तक हमारा सिल्क क्लॉथ का थ्रेड जो है वो ड्राई था, कुछ भी नहीं हुआ। बट एज सून इट स्टार्टेड रेनिंग, थ्रेड गॉट वेट एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो हम लोग देख सकते थे स्काई में, राइट? So now bachcho, next we have lightning. So lightning is a powerful and natural electric discharge that occurs in the atmosphere often during thunderstorm. So बच्चों, lightning है क्या, ये एक powerful natural electric discharge है जो कि atmosphere के अंदर होता है, and ये oftenly कब होता है, during the thunderstorms. So you may have seen small sparks in everyday situation, such as when wires on electric poles become loose, especially when the wind blows and shakes the wire. अब बच्चों, हम लोग इस तरीके के स्पार्क्स ना एवरीडे लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जब वायर्स जो कि इलेक्ट्रिक पोल्स पे बंधी होती है वो लूज हो जाए, एंड स्पेशली जब विंड चल रही होती है, सो ये विंड क्या करती है, ये वायर्स को शेक करती है, राइट? सिमिलरली स्पार्क्स में अकर व्हेन अ प्लग इज लूजली कनेक्टेड टू इट्स सॉकेट। एंड इसी तरीके से स्पार्क जो है वो और कब देखने को मिलता है हमको, जब प्लग बहुत लूजली सॉकेट से कनेक्टेड रहता है। सो दीज स्पार्क्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एंड ये स्पार्क्स कब होते हैं, ये स्पार्क्स हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट की वजह से होते हैं। व्हाइल दीज एवरीडे स्पार्क्स आर स्मॉल एंड रिलेटिवली हार्मलेस। अब बच्चों, होता क्या है कि ये जो एवरीडे स्पार्क है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं
एंड हार्मलेस होते हैं। लाइटनिंग जो है वो मच लार्जर एंड मोर डेंजरस वर्जन है इसी सेम फिनोमिना का। सो इन अर्लियर टाइम पीपल वर अनअवेयर ऑफ ट्रू कॉजेस ऑफ लाइटनिंग। अब बच्चों पहले के टाइम पे लोग जो है वो अनअवेयर थे इस लाइटनिंग के ट्रू कॉजेस के, एंड ये बिलीव करते थे कि ये किस चीज का साइन है, या गॉड का साइन है, एंगर और डिसप्लेजर का साइन है। दो दिस फियर वाज रूटेड इन द मिस्ट्री सराउंडिंग सच पावरफुल नेचुरल इवेंट। एंड इस तरीके का फियर जो है वो हम लोगों को हमारे नेचुरल इवेंट्स के अंदर देखने को मिलता था। सो टुडे हाउएवर वी नो कि लाइटनिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, वो चार्जेस के बिल्डअप होने की वजह से होती है। एंड व्हेन दीज चार्जेस ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सो ये अपने आप को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, लाइटनिंग की फॉर्म में, जो कि एक बहुत मैसिव स्पार्क होता है, राइट। एंड ये स्पार्क किसके बीच में ट्रैवल कर रहा होता है, क्लाउड एंड अर्थ के बीच में और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स। सो इवन दो we now understand the science behind the lightning, it remains a dangerous force of nature and it is crucial to take safety precaution to protect against its harmful effect। अब बच्चों ये जो नेचुरल इवेंट है इसके अगेंस्ट हमको अपने आप को बचाना भी है, राइट। सो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके एंशियंट रूट्स है। एज बैक एज 600 BC एंशियंट ग्रीक्स ऑब्जर्व्ड एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, एंड वो इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्या है, व्हेन एम्बर अ टाइप ऑफ फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन, इसको हमने रब किया था एक फर के साथ, सो ये अट्रैक्ट हो गया था टू लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हेयर और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। सो दिस डिस्कवरी वाज एन अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एट वर्क, दो द ग्रीक्स डिड नॉट फुली ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एज वी डू टुडे। सो नाउ ग्रीक्स को उस टाइम पे उतने अच्छे से चार्जेस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था जितने अच्छे से आज हम समझ सकते हैं। सो यू माइट हैव एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर जब हम लोग क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं वुलन या फिर पॉलिएस्टर क्लोथिंग को, राइट। सो कभी कभी क्या होता है, हमारे हेयर स्ट्रैंड्स जो है वो आप देखते होंगे कि हल्का सा चट चट की आवाज जो है वो आती है, राइट। सो दिस इज कॉज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अनदर। So now, bachcho, next we have the story of lightning. So lightning can be explained through the movement of electric charges during a thunderstorm. Upward moving air currents and downward moving water droplets create a separation of charges within the clouds. So बच्चों अब हम lightning को किस तरीके से explain करते हैं, by the movement of electric charges. So thunderstorm के time पे क्या होता है, जो हमारी upward moving air होती है, air currents होते हैं, and downward moving water droplets होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो create कर देते हैं separation of charges within the clouds. So although the एग्जैक्ट प्रोसेस उसको हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, इट इज नोन दैट पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं एट द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड, व्हाइल नेगेटिव चार्जेस जो है वो लोअर एजेस ऑफ द क्लाउड पर इकट्ठे हो जाते हैं। सो दिस सेपरेशन आल्सो लीड्स टू पॉजिटिव चार्जेस जो कि ग्राउंड पर बिल्डअप हो जाते हैं। सो व्हेन द चार्ज एक्यूमुलेशन ये बहुत ज्यादा हो जाता है, सो एयर विच टिपिकली एक्ट्स एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब ये कोई भी चार्जेस को फ्लो नहीं करवा सकती है, राइट, कैन नो लॉन्गर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि अब ये चार्जेस के फ्लो को रोक नहीं सकती। सो दिस लीड्स टू मीटिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपस में मिल जाते हैं, रिजल्टिंग इन ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट एंड साउंड। एंड जैसे ये चार्जेस मिलते हैं, सो एकदम से ब्राइट लाइट जो है वो आती है एंड बहुत तेज आवाज आती है, एंड दैट इज हाउ वी ऑब्जर्व लाइटनिंग। एंड दिस फिनोमिना इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड कैन अकर बिटवीन द क्लाउड। अब इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एंड ये किसके बीच में होता है, क्लाउड्स के बीच में। सो बिटवीन क्लाउड्स एंड ग्राउंड्स और विद इन अ सिंगल क्लाउड आल्सो। सो नाउ वी हैव अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड लाइटनिंग हेल्प्स टू एलिविएट द फियर दैट आवर एंसेस्टर्स एक्सपीरियंस। सो नाउ बच्चों अब अगर हम लोग साइंस को समझे बिहाइंड द लाइटनिंग, सो इससे होगा क्या, हम लोग हमारे फियर जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने एक्सपीरियंस किया है हम उसको हटा सकते हैं। सो हाउएवर इट इज क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज दैट लाइटनिंग स्ट्राइक्स ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं, and this can also cause significant harm to life and property। therefore हमको lightning के अगेंस्ट जो measures होते हैं वो अच्छे से लेने होते हैं। So now बच्चों next we have lightning conductor। So a lightning conductor is a device designed to protect building from lightning strikes। अब बच्चों lightning conductor है क्या, ये एक डिवाइस है जो कि हमारी buildings को lightning strike से बचाती है। So during construction a metallic rod taller than the building उसको install किया जाता है and its one end is exposed to the air and the other buried deep in the ground। So this rod provides a safe pathway for electric charges to be transferred to the ground। अब बच्चों आप लोगों ने एक चीज जरूर देखी होगी कि बिल्डिंग्स में ना क्या होता है कि
कि एक एंड पर जो एक मेटालिक रॉड्स होती है, जो लोहे के सरिये होते हैं, वो एक्सपोज होते हैं एयर के साथ, राइट। एंड इनको क्यों एक्सपोज रखा जाता है एयर के साथ? क्योंकि इनका दूसरा एंड जो है वो तो सॉइल के अंदर बरीड होता है। सो अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन रॉड से यानी कि टॉप एंड से सीधा ग्राउंड में चला जाए, इसलिए इनका एक एंड जो है वो खुला रखा जाता है। सो एडिशनली मेटल कॉलम्स, electric wires and water pipes in buildings offer some protection. However, it is crucial not to touch them during a thunderstorm. अब बच्चों एडिशनली हमारे पास क्या होते हैं? मेटल कॉलम्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, वाटर पाइप्स होती है बिल्डिंग्स के अंदर, एंड थंडर स्टॉर्म के टाइम बोला जाता है कि इनको टच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रिकॉशंस ड्यूरिंग थंडर एंड लाइटनिंग। सो थंडर एंड लाइटनिंग के टाइम पे हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सो एज देयर आर लॉट ऑफ डेंजर्स एसोसिएटेड विद लाइटनिंग एंड थंडर, we must be careful on cloudy days when lightning is seen in the sky. We should take the following precaution. अब बच्चों हम लोगों के आसपास बहुत सारे डेंजर्स होते हैं लाइटनिंग के टाइम पे, थंडर के टाइम पे। सो इसलिए जब भी क्लाउडी डे होता है ना, और जब भी लाइटनिंग देखी जाती है, सो उस टाइम पे हमको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए एंड कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो वी हैव जनरल सेफ्टी गाइडलाइंस। सो नो ओपन एरिया इज कंप्लीटली सेफ ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्टॉर्म। अब बच्चों जब भी बिजली कड़क रही होती है, जब भी स्टॉर्म्स, लाइटनिंग स्टॉर्म्स होते हैं, उस टाइम पे कोई भी ओपन एरिया सेफ नहीं होता है। एंड आफ्टर हेयरिंग थंडर सिग्नल्स हमको सेफर लोकेशन पे मूव कर जाना चाहिए। एंड आफ्टर द लास्ट थंडर क्लैप हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए सेफ स्पॉट को छोड़ने से पहले। Now, next we have finding a safe space, safe place. So house और building वो क्या है? वो एक secure shelter होता है। And if traveling by car और bus, so हमको inside ही रहना है और windows और doors को closed रखना है। So now we have do's and don'ts during a thunderstorm. So now we have outside. So open vehicles जैसे कि motor bikes, tractors, ये सब and open cars ये जो है वो unsafe होते हैं, right? Now avoid open field, tall areas and elevated areas. These do not provide protection against lightning. So अब हमको open fields को avoid करना है, tall trees को avoid करना है, elevated areas को avoid करना है, क्योंकि ये लोग हमको lightning से protection नहीं देते हैं। नाउ अब हमको कोई भी अम्ब्रेला कैरी नहीं करना है थंडर स्टॉर्म के टाइम पे। एंड इन अ फॉरेस्ट हम लोगों को शेल्टर जो है वो शॉर्टर ट्रीज के नीचे ढूंढना है। नाउ इन एन ओपन फील्ड विदाउट शेल्टर हम लोगों को ट्रीज से, पोल से एंड मेटल ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। हमको ग्राउंड पे फ्लैट नहीं लेटना है, इंस्टेड हमको स्क्वाट करना है। जैसे इस पोजीशन में आप लोग देख सकते हो कि ये पर्सन बैठा हुआ है, सो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वाट लो। एंड विद हैंड्स ऑन योर नीज एंड हेड हम लोगों को टक रखना है बिहाइंड, राइट। सो दिस पोस्चर, इससे क्या होता है? रिस्क ऑफ बीइंग स्ट्रक ये जो है वो कम हो जाता है। नाउ वी हैव प्रिकॉशंस इनसाइड द हाउस। सो लाइटनिंग जो है वो हमारी टेलीफोन लाइंस को स्ट्राइक कर सकती है, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स को स्ट्राइक कर सकती है। सो हमको इनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं रखना है ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। देन वी हैव यूज अ मोबाइल एंड कॉर्डलेस फोन। अब हमको मोबाइल या फिर कॉर्डलेस फोन यूज करना है। Instead, however, avoid calling someone on a wired phone. Now, we do not have to take baths or shower as running water वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। देन हमको अनप्लग करना है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, जैसे कि कंप्यूटर्स एंड टीवीज को। एंड हमको लाइट्स जो है वो ऑन ही रखनी है। कीपिंग लाइट्स ऑन वो जनरली सेफ होता है, एज इनका कोई भी थ्रेट हमको नहीं दिखता है। ना बच्चों, हियर वी हैव ब्रश अप सेशन 1। सो आप लोगों को क्या करना है? आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव अर्थक्वेक। So earthquake क्या है? Earthquake is also a natural phenomena that leads to significant destruction of human life and property. So unlike thunderstorm and lightning, which can be predicted to some extent by weather department, earthquake को हम लोग predict कर ही नहीं सकते। So this unpredictability poses serious threat जो कि एकदम से आता है and without any warning जो कि एक immense damage cause कर सकता है। So now we have notable earthquakes in India. So two significant earthquakes in India. First हमारे पास है October 8, 2005 and this is a major earthquake जो कि हुआ है towns of Uri and Tangnar in North Kashmir, resulting in widespread destruction. Then we have January 26, 2001 जहां पर एक earthquake ने hit किया था Bhuj district of Gujarat, causing extensive damage and loss of life.
सो नाउ बच्चों एन अर्थक्वेक वो है क्या, दैट इज ए सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ जो कि कुछ टाइम के लिए रहता है. सो ये फिनोमेना क्या कॉज करता है, डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट. नाउ ऑल दो स्मॉल अर्थक्वेक्स ये तो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं एंड इनको कोई इतना नोटिस भी नहीं करता है, बट मेजर अर्थक्वेक्स ये थोड़े से कम कॉमन होते हैं एंड ये मेजर अर्थक्वेक्स ही हमारी बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, डैम्स को बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं एंड इवन लाइफ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. सो इन एडिशन इमीडिएट इफेक्ट अर्थक्वेक्स कैन ट्रिगर फ्लड्स. अब अर्थक्वेक्स के साथ साथ फ्लड्स आ सकता है, लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, सुनामीज आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, a devastating tsunami it occurred in Indian Ocean on December 26, 2004 जहां पे बहुत सारे कोस्टल एरियाज इफेक्ट हुए थे. सो ना बच्चों अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को. सो अर्थ को हम लोगों ने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट. सो सरफेस ऑफ अर्थ वेयर वी लिव इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, एंड इसको हम बोलते हैं हार्ड आउटर शेल. सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वो एक सिंगल पीस नहीं है, राइट. सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट वन पीस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स. सो हमारा जो अर्थ है वो कलेक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स है एंड दीज फ्रैगमेंट्स इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्स. So these plates, these are the continuous motion. When they burst, one another or a plate goes under another due to collision. अब बच्चों होता क्या है कि ये burst जब एक दूसरे के साथ burst होती है, यानी कि एक दूसरे से जब टकराती है, so एक प्लेट ऊपर जाती है एंड एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है, जिसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होती है. So just below the crust हमारे पास है mantle जो कि softer है and denser है. So mantle 2900 किलोमीटर थिक है एंड इसमें सेमी सॉलिड रॉक होती है, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है. सो क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ मैंटल इनको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर. सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ इसको बोलते हैं कोर एंड इट इज मेनली अ हॉट रीजन. सो जो हमारा सेंटर पार्ट है हमारे अर्थ का वो क्या है, कोर. एंड कोर जो है वो मेनली एक हॉट रीजन है जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, निकल एंड आयरन मेटल्स. सो कोर को हम लोगों ने सब डिवाइड भी किया है इनर कोर एंड आउटर कोर में. सो इनर कोर इज अबाउट 1200 किलोमीटर थिक एंड इट इज बिलीव्ड कि ये किस चीज से कंपोज्ड है, ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ सॉलिड आयरन. ऑन द अदर साइड आउटर कोर वो 2300 किलोमीटर थिक है एंड इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, निकल इन molten state. So there is also some sulfur present here, right. So now next we have lithosphere. So lithosphere of earth is made up of number of separate plates and rocks जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स. एंड ये प्लेट्स जो है वो मूव करती रहती है, स्लाइड होती रहती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं. So now बच्चों here we have pick up more. So Thucydides, a Greek philosopher who was born in 4060 BC, he was the first person जिसने associate किया था सुनामी को with underwater earthquake. So tsunamis जो है वो क्या होती है, वो great waves होती है जिसमें बहुत ज्यादा हाइट होती है एंड ये किसकी वजह से होती है, एंड ये होती है earthquakes की वजह से है एंड ये लैंड पे बहुत ज्यादा डिवास्टेशन कॉज करती है. सो नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव हाउ earthquakes occur. सो द टेक्टोनिक प्लेट्स वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, and are similar pieces of a jigsaw that are continuously moving. So हमारी जो tectonic plates है ये continuously move कर रही है, right. So at places movement of the plates ये क्या होता है, ये smooth नहीं होता है and plates जो है वो एक दूसरे में फंस जाती है together. So जिसकी वजह से rest of each plates continues to move. So इसकी वजह से होता है हमारे पास tremendous strain. आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये दो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे पे टकरा गई है, right, and एक एंड जो है वो इनका फंस चुका है. So the point where the earthquake originate इसको बोलते हैं focus. So this starting point of the earthquake. So focus ही क्या होता है, जहां पर earthquake जो है वो start होता है. So the point of the surface on the earth immediately above the focus इसको क्या बोला जाता है, epicenter. So अब focus के जो just ऊपर वाला एरिया होता है इसी को बोलते हैं हम लोग epicenter. Since earthquakes are caused by movement of plates, so boundary of plates ये क्या है, ये weak zones है जहाँ पे earthquake जो है वो ज्यादा होने के chances होते हैं. So weak zones को हम लोग seismic और fault zones भी बोलते हैं. When the edges release themselves, energy which got confined radiates outwards from the fault. अब बच्चों होता क्या है कि जहां पर ये एजेस फंस चुकी होती है, अब जब ये वहां से बाहर निकलती है सो इनके अंदर से एनर्जी भी बाहर निकलती है एंड ये एनर्जी जो है वो क्या बनाती है, सिस्मिक वेव्स. सो दीज वेव्स ये क्या करती है, ये अर्थ को शेक करती है. सो दीज वेव्स शेक द अर्थ एज दे मूव थ्रू इट एंड ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस ये हर चीज को शेक कर देती है. सो नाउ इन इंडिया अर्थक्वेक वल्नरेबल जोन्स हमारे पास क्या क्या है, कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैग्नेटिक प्लेट्स एंड ऑल
also some areas in South India. So now bachcho, here we have pick up more. So despite the knowledge of what causes earthquakes, scientists have not yet developed reliable methods जो कि earthquake को predict कर सके कि कहाँ पर earthquake आने वाला है. So other events जैसे कि volcanic eruptions, meteor impacts and underground nuclear explosions, ये भी क्या कर सकते हैं, ये tremors cause कर सकते हैं, adding to the complexity of understanding and predicting earthquakes. So बच्चों, आप लोग खुद सोचो कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, बट स्टिल अभी तक हमारे पास ऐसा टूल नहीं है जो कि earthquake को predict कर सके. तो इसका मतलब ये कितना ज़्यादा complex process होगा. So now we have measuring earthquake. So the intensity of earthquake, इसको हम measure करते हैं in terms of magnitude and on a scale जिसका नाम क्या होता है, Richter scale. So it is read from 1 to 9. अब जो intensity है वो 1 से 9 तक में read करी जाती है. So the intensity of an earthquake is recorded on seismograph. So seismograph record करता है slightest vibrations in the surface of earth as zigzag lines on a moving graph paper. अब बच्चों क्या होता है कि ये जो seismograph है ये हमारी vibration जो surface of earth में vibration आती है उसको zigzag lines में ये measure करता है. So the time, location and magnitude of an earth, ये क्या करता है, this can be determined from data recorded on seismograph. So seismograph is also used in petroleum exploration, investigation of earth's crust and lower layers, and यहाँ पर हम लोग monitor कर सकते हैं volcanic activities को भी. So now बच्चों, next we have protection against earthquake. So earthquake जो है वो pose करते हैं significant threat to our life and property, particularly in regions जिनको हम बोलते हैं seismic zones. Since these natural disasters इनको हम accurately predict कर ही नहीं सकते, so it is crucial कि हम लोग protective measures जो है वो implement करें so that हम लोग हमारे individuals को protect करके रख सके. So here are comprehensive recommendations जो कि enhance करते हैं safety को before and during and after an earthquake. So first of all we have building design and construction. So सबसे पहले तो हमको earthquake resistant structure बनाना पड़ेगा. So it is essential कि हम लोग हमारी buildings को ऐसे डिजाइन करें कि वो seismic activity को withstand कर सके. Then हमको engage करना है, engage qualified architects and structural engineers जो कि ये ensure करे कि structures जो कि हम build कर रहे हैं उनमें अच्छे materials use करे गए हैं and अच्छी techniques use करी गई है. Now we have material selection. So in areas prone to earthquakes वहाँ पे हमको लाइट वेट मटेरियल्स यूज करने हैं जैसे कि मड और टिम्बर रादर दैन हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. सो लाइटर रूफ्स जो है वो मिनिमाइज कर सकती है पोटेंशियल डैमेज को इन द इवेंट ऑफ कोलैप्स, राइट. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव सिक्योर फर्नीचर. सो हम लोगों को इंश्योर करना है कि कबर्ड्स एंड शेल्व्स जो है वो सिक्योरली हमारे वॉल्स की तरफ एंकर्ड रहे. नाउ एडिशनली हम लोगों को कॉशियस रहना है अबाउट प्लेसमेंट ऑफ वॉल्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एंड अदर आइटम्स सो दैट हम लोग इन ट्रेमर्स के टाइम पे जो भी डिस्ट्रक्शन है उनको प्रिवेंट कर सके. देन वी हैव फायर सेफ्टी इक्विपमेंट. सो हमको सारी बिल्डिंग के अंदर स्पेशली टॉलर स्ट्रक्चर्स में हमको फंक्शनल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाने हैं एज अर्थक्वेक्स जो है वो कभी कभी फायर भी लीड कर सकती है. देन वी हैव क्वेक रेजिस्टेंट हाउसिंग. सो हमारे पास सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रुड़की है जिन्होंने डेवलप की है इनोवेटिव टेक्निक्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वेक रेजिस्टेंट होम्स विच should be considered in earthquake prone areas. and हमको in quake resistant homes को earthquake prone areas पे बनाना consider करना चाहिए. Now next we have safety measures during an earthquake. So if an earthquake occurs we have to follow these guidelines and we have to ensure personal safety. So now first of all if you are at home so we have to seek shelter. So we have to take cover under a study table or desk and remain there until the shaking stops. यानी कि हम लोगों को किसी भी टेबल या डेस्क के नीचे जाके छुपना है एंड कब तक छुपे रहना है जब तक वो टेबल जो है वो शेक होना बंद नहीं कर देता. देन अवॉइड हैजार्ड्स. सो स्टीयर clear of tall and heavy objects that may fall during the tremors. Then stay in bed. If you are in bed, remain there and protect your head with a pillow. So now बच्चों अगर आप लोग बेड में हो so आपको बेड के अंदर ही रहना है एंड अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्टेड रखना है. एंड इफ यू आर आउटडोर so आपको एक क्लियर एरिया जो है वो देखना है. मूव टू एन ओपन स्पेस. एंड अगर आप लोग अर्थक्वेक के टाइम पे कहीं बाहर हो so आपको खुले मैदान की तरफ भागना है जहां पर बिल्डिंग, ट्रीज या फिर कोई भी ओवरहेड पावर लाइंस ना हो. देन ड्रॉप टू द ग्राउंड and stay there only जब तक shaking जो है वो बंद ना हो जाए. Then if you are in vehicle so remain in vehicle. If you are in a car और बस आपको उसी के अंदर रहना है and आपको ड्राइवर को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि वो स्लोली जो है वो एक क्लियर एरिया की तरफ चले जब तक ट्रेमर्स नहीं रुक जाते.
So now, Bacha, here we have thought shower 3. So Mohan lives in an earthquake-prone area. What are 3 steps that he can take to make his home safer during an earthquake? So बच्चों अगर कोई earthquake-prone area में रहता है, so सबसे पहले तो उसको अपना घर जो है वो light materials use करने चाहिए, right? उसको mud use करना चाहिए. Then उसके घर में जितने भी cupboard, shelves है, वो सब जो है वो wall में अच्छे से anchored होने चाहिए. And besides that, जो हमारा प्लेसमेंट ऑफ क्लॉक्स है, फोटो फ्रेम्स है, उसको भी हमको कुछ अच्छी जगह देखकर करना चाहिए सो दैट अगर कभी ट्रेमर्स हो तो वो हमारे सर पे आके ना गिरे डायरेक्टली. नाउ नेक्स्ट वी हैव रैपर. सो इवेंट्स लाइक लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना है, राइट? सो लाइटनिंग को हम लोगों ने कैसे डिस्क्राइब किया है? इलेक्ट्रिक स्पार्क जो कि लार्ज स्केल पर कॉज होता है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस किसके अंदर? क्लाउड्स के अंदर. सो एंशियंट पीपल ने लाइटनिंग को मिसअंडरस्टूड किया था कैसे कि ये गॉड की पनिशमेंट है, गॉड गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि उनको साइंटिफिक चीजों के बारे में नहीं पता था. देन थंडर क्या है? थंडर एक साउंड प्रोड्यूस होता है बाय रैपिड एक्सपेंशन, राइट? सो जब भी हमारी एयर हीट होती है फॉलोइंग लाइटनिंग, सो तब हमको थंडर देखने को मिलता है. अर्थक्वेक्स जो है वो सडन शेकिंग है ग्राउंड का, जो कि किसकी वजह से होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होती है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अकर्स जब ऑब्जेक्ट्स के पास क्या आ जाते हैं, जब वो गेन या फिर लूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करने लग जाते हैं छोटी छोटी चीजों को. नाउ नेचुरल फिनोमिना जो है वो फैसिनेटिंग हो सकता है एंड समटाइम्स डेंजरस भी हो सकता है, जो कि इम्पैक्ट कर सकता है हमारे वर्ल्ड को सिग्निफिकेंटली. So now बच्चों, here we have this exercise over here in which you have few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.